آداب، یہ ہے اعتماد کی خبریں۔ سب سے پہلے پیش سرخیاں۔ نیٹ یو جی امتحان سے متعلق مرکز کا اہم فیصلہ، پورے ملک میں ایک ہی دن میں OMR کے طریقہ کار سے ہوں گے امتحانات۔ بالی ووڈ فلم اداکار سیف علی خان پر قاتلانہ حملہ، حالت مستحکم، ہاسپٹل میں زیر علاج۔ BRS سے کانگریس میں شامل ارکان اسمبلی کو نااہل قرار دیا جائے، پارٹی سپریم کورٹ سے رجوع۔ BRS کے کارگزار صدر ED کے روبرو حاضر، KTR سے حکام کی پوچھ تاچھ۔ اور بینک ملازمین پر فائرنگ کر کے رقم لوٹ لی گئی، ATM میں رقم جمع کروانے کے دوران واقعہ۔ سرخیوں کے بعد اب پیش ہے خبروں کی تفصیلات۔ قطر، مصر اور امریکہ کی ثلاثی کی شدید کوشش کے بعد حماس اور اسرائیل نے غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے پر اتفاق کیا ہے۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی نے نیوز کانفرنس میں بتایا کہ غزہ میں دونوں متحارب فریقوں نے یرغمالیوں اور قیدیوں کے تبادلے اور دیرپا امن کی بحالی کا معاہدہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں مستقل جنگ بندی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ معاہدے پر عمل درآمد اتوار 19 جنوری سے ہو جائے گا۔ معاہدے کے مطابق فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے بدلے تحریک حماس 6 ہفتوں کے عرصے میں پہلے مرحلے میں 33 مغویوں کو رہا کرے گی۔ معاہدے کے پہلے مرحلے کی تکمیل کے بعد دوسرے اور تیسرے مرحلے کی تفصیلات کا اعلان کیا جائے گا۔ جنوبی افریقہ میں سونے کی کان میں دب کر مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 78 ہو گئی ہے۔ ساؤتھ افریقن پولیس سروس نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ شمال مغربی صوبے میں اسٹیلفونٹین کان سے پیر کو امدادی کارروائیاں شروع کرنے کے بعد سے جملہ 246 زندہ بچ جانے والوں اور 78 نعشوں کو نکالا جا چکا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ جدید ترین آلات سے لیس ریسکیو کارکن دوبارہ کان میں اتریں گے تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ آیا وہاں کوئی اور کارکن اب بھی موجود ہے یا نہیں۔ انڈونیشیا کے شہر جکارتہ کے ایک شاپنگ مال میں آگ لگنے سے 7 افراد لاپتہ ہیں۔ پولیس نے جمعرات کو یہ اطلاع دی۔ پولیس کے مطابق مال میں آگ چہارشنبے کی رات مقامی وقت کے مطابق تقریباً 9:20 پر لگی۔ مرکزی حکومت نے ملک بھر میں طبی تعلیم کے کورسز میں داخلے کے لیے نیٹ UG امتحان کے انعقاد کے حوالے سے اہم فیصلہ کیا ہے۔ یہ امتحانات اب پین اور کاغذ OMR پر مبنی کے طریقہ کار سے ہی منعقد کیے جائیں گے۔ مرکز نے اعلان کیا کہ پورے ملک میں ایک ہی دن اور ایک ہی شفٹ میں امتحانات ہوں گے۔ وزارت تعلیم اور وزارت صحت کے درمیان طویل مشاورت کے بعد آخرکار یہ فیصلہ کیا گیا کہ نیٹ UG امتحانات OMR پینل طریقے سے منعقد ہوں گے۔ BJP نے دہلی اسمبلی انتخابات کے لیے آج اپنے 9 امیدواروں کی چوتھی فہرست جاری کی۔ پارٹی کے قومی جنرل سیکریٹری ارون سنگھ کی طرف سے جاری کردہ فہرست کے مطابق روی کانت اجین، پروین نمیش اور رویندر کمار کو امیدوار بنایا گیا ہے۔ مزید پارٹی نے پونم شرما، بھون تنور، چندن کمار چودھری، شیکھا رائے، سنجے گوئل اور اٹل بسٹ کو امیدوار بنایا ہے۔ ایک نامعلوم حملہ آور آدھی رات کو بالی ووڈ اداکار سیف علی خان کے گھر میں داخل ہوا اور ان پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ اس حملے میں وہ شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ ممبئی کے لیلاوتی ہاسپٹل میں ان کی 2 سرجری کی گئی۔ ہاسپٹل کے بیان کے مطابق وہ فی الحال خطرے سے باہر ہیں۔ پولیس اس معاملے کی جانچ میں مصروف ہے۔ اطلاعات کے مطابق سیف علی خان پر حملہ کرنے والا شخص عملے کے ایک رکن کو جانتا تھا اور اس کی مدد سے گھر میں داخل ہوا۔ پولیس نے گھر کے CCTV فوٹیج بھی چیک کیے اور اس کی ایک تصویر حاصل کر لی گئی۔ سیف علی خان پر حملے کی خبر سامنے آنے کے بعد ان کے چاہنے والوں میں پریشانی کی لہر دوڑ گئی۔ عام لوگوں سے لے کر مشہور شخصیات تک سبھی ان کی عاجلانہ صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ ریاست آندھرا پردیش میں 6 افراد سمندر میں غرق ہو گئے۔ یہ افسوسناک واقعہ پرکاشم ضلع کے سنگاریا کنڈا میں پیش آیا۔ سنگاریا کنڈا منڈل کے پاکالا ساحل پر نہانے کے لیے جانے والے 6 افراد سمندر میں ڈوب گئے۔ اطلاع ملتے ہی میرین پولیس نے مقامی ماہی گیروں کی مدد سے غرق ہونے والوں کی تلاش شروع کر دی۔
3 अफराद की नाशें निकाल ली गईं, जिन्हें करीबी सरकारी हॉस्पिटल के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया गया। रियासत कर्नाटक के बिदर शहर में एसबीआई बैंक के मरकजी दफ्तर के सामने दिन दहाड़े फायरिंग का वाकया पेश आया। एटीएम में रकम डालने के लिए आए बैंक मुलाजिमीन पर हमलावरों ने मिर्च पाउडर छिड़क दिया और फायरिंग के बाद रकम लूट कर फरार हो गए। इस हमले में एक बैंक मुलाजिम मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि दूसरा शदीद जख्मी बताया गया है। बैंक मुलाजिमीन लाखों रुपए लेकर जीएससी गाड़ी में आए थे और जैसे ही वो एटीएम में रकम डालने लगे, हमलावरों ने अचानक 5 गोलियां चला दी। इस दौरान हमलावर रकम से भरे बैग लेकर भी फरार हो गए। दिल्ली के दौरे में मसरूफ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जुमेरात को मरकजी वजीर माहौलियात भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात में कई प्रोजेक्ट्स के माहौलियाती इजाजतनामे देने के मामले पर बातचीत की गई। खासतौर पर रीजनल रिंग रोड और सयाहती शोबे से मुताल्लिक कुछ जंगलाती अराजी के लिए माहौलियाती इजाजतनामों की ज़रूरत थी, जिसके लिए मरकजी हुकूमत से इजाज़त मिलना ज़रूरी है। चीफ मिनिस्टर इन प्रोजेक्ट्स के लिए पहले भी भेजी गई तजावीज़ पर फौरी इजाज़त देने की दरख्वास्त की। इस मुलाकात में रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर, पी श्रीनिवास रेड्डी, कोंडा सुरेखा और दूसरे भी मौजूद थे। साबिक मरकजी वजीर और कांग्रेस के सीनियर लीडर एस जयपाल रेड्डी की यौम पैदाइश पर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने उनको भरपूर ख़राज अक़ीदत पेश करते हुए मुल्क के लिए उनकी खिदमत को याद किया। उन्होंने याद दिलाया कि तेलंगाना की तश्कील में जयपाल रेड्डी के रूल को अवाम कभी फरामोश नहीं करेंगे। जयपाल रेड्डी ने तेलंगाना की हुस्कुली के लिए एक खामोश सिपाही की तरह मुल्क की तमाम सियासी जमातों के साथ तालमेल कायम करने में अहम रोल अदा किया। बीआरएस ने कांग्रेस में शामिल होने वाले अपने एमएलएस को नाअहल करार देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 2 दरख्वास्तें दायर की हैं। बीआरएस कायदीन का कहना है कि इन 10 एमएलएस के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाए 9 माह हो चुके हैं, लेकिन स्पीकर ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया। पार्टी ने कड़ियम श्रीहरि, वेंकट राव और दानम नागेंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है, जबकि बाकी 7 एमएलएस के खिलाफ रिट पिटीशन दायर की गई, जिनमें पोचारम श्रीनिवास रेड्डी, काले यादయ్య, डॉक्टर संजय, आरकेपुड़ी गांधी, प्रकाश गौड़, महिपाल रेड्डी और कृष्ण मोहन रेड्डी शामिल हैं। रियासती वज़ीर ज़राअत टी नागेश्वर राव ने ज़िले निज़ामाबाद में मरकजी हुकूमत की जानिब से हल्दी बोर्ड के क़याम पर किए गए इज़हार तशक्कुक पर बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद के एतराज़ को गैर ज़रूरी करार दिया। उन्होंने इस मामले पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए सवाल किया कि वो रियासत के वज़ीर ज़राअत के तौर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का हल्दी बोर्ड के क़याम के लिए शुक्रिया अदा करते हैं, तो अरविंद को क्या एतराज़ है। वज़ीर मौसूफ ने आज खम्मम ज़री मार्केट का दौरा किया, जहां कल रात आग लगने का वाक़या पेश आया था। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि आतिशज़दगी के वाक़े में कपास के थैलों का जल जाना अफसोसनाक है। बीआरएस सरबराह और साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के पोते हिमांशु ने अपने दादा के साथ खेतों में काम करने का एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में हिमांशु खेत में पौधे लगा रहे हैं और दादा केसीआर उन्हें तरीका बता रहे हैं। हिमांशु ने खुद मिट्टी खोदकर पौधों के लिए गड्ढा तैयार किया और खाद डालकर पौधा लगाया। हिमांशु ने इस वीडियो में मौसीकी के तौर पर प्रणामम प्रणामम सस्मित प्रकृति को प्रणामम गाने की धुन भी शामिल की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। तेलंगाना की कलेक्टर नलगोंडा इल्ला त्रिपाठी ने गुर्रमपुडू के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ड्यूटी से गैर हाजिर मुलाजिमीन को मुअत्तल कर दिया, जबकि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को खिदमत से बरतरफ कर दिया गया। उन्होंने इस हेल्थ सेंटर का अचानक मायना किया। इस मायने के दौरान स्टाफ के अरकान के बगैर इतला गैर हाजिर होने पर उन्होंने ये कार्रवाई की। इस मौके पर उन्होंने इंतबाह दिया कि इजाज़त के बगैर ड्यूटी से गैर हाजिर रहने वाले मुलाजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीआरएस के साबिक एमएलए जी बालाराजू के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। नागर कर्नूल जिले के चंपेट में वाक़ एक मंदिर के करीब जुमेरात की रात पेश आए वाक़े में पुलिस का इल्ज़ाम है कि बालाराजू ने सरकारी कामकाज में रुकावट पैदा की,
जिस पर सब इंस्पेक्टर रमेश की शिकायत पर पुलिस ने बीआरएस के कई कारकुनों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया। इतलात के मुताबिक उस वक्त कांग्रेस के एमएलए वंशी कृष्णा मंदिर में मौजूद थे और पुलिस ने बीआरएस के साबिक एमएलए जीबाला राजू को मंदिर में दाखिल होने से रोक दिया, जिसके बाद वहां कशीदगी पैदा हो गई। तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिर जिले में पेश आए सड़क हादसे में एक ही खानदान के 2 अफराद मौके पर हलाक हो गए। यह हादसा जिले के रायगिरी में हैदराबाद भोपालपट्टनम कौमी शाहरा पर उस वक्त पेश आया जब एक कार ने ठहरी हुई लारी को टक्कर दे दी। कार में सवार अफराद महबूबाबाद जिले के वेंकटराम तांडा से कार में हैदराबाद की सिमत जा रहे थे। इतलात के मुताबिक कार में 7 अफराद सवार थे। कार चलाने वाले भूकिया संतोष शदीद जख्मी बताया गया है, जबकि इसकी बीवी 25 साल अनुषा और बेटी 5 साल चित्रा जो अगली सीट पर बैठी थी मौके पर ही हलाक हो गईं। तेलंगाना की खम्मम कॉटन मार्केट में आग लगने का वाकया पेश आया। वाकया कल रात मार्केट में शेड नंबर 3 में पेश आया, जिसके सबब तकरीबन 1500 कपास के थैले जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गए। इस वाकये में 2.5 करोड़ रुपए मालियाती नुकसान का पता चला है, जबकि किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इतला नहीं मिली। फायर ब्रिगेड के अमले ने आग बुझाने का काम किया। ముదిగొండ నుంచి ఉండే ఇక్కడ ముదిగొండలో ఉన్నట్టుంది కదా మీరు ఫస్ట్ కింద ఉన్నప్పుడు వచ్చినావు అవి కూడా వస్తాయి మొత్తం। ఖమ్మం పత్తి మార్కెట్లో పూర్తిగా పత్తి దగ్ధమైన తర్వాత వచ్చిన ఫైర్ సిబ్బంది దీనంతటికి साबिक तेलंगाना के वजीर और बीआरएस के रुकन असम्बली केटी रामाराव फार्मूला ई कार रेस केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने हाजिर हुए, जिनसे ओहदेदारों ने पूछगछ की। केटी रामाराव कबल इस मामले में एसीबी के सामने पेश हो चुके हैं। अब ईडी की जांच के साथ इस मामले में तेजी से तब्दीलियां आ रही हैं। గౌరవించే పౌరుడిగా ఏ తప్పు చేయకపోయినా ఒక్క పైసా అవినీతికి పాల్పడకపోయినా రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం కక్ష సాధింపు చర్యల్లో కేసు పెడితే విచారణ అధికారులను విచారణ సంస్థలను గౌరవించి 9 తారీఖు నాడు ఏసీబీ విచారణకు హాజరయ్యాను। 16 తారీఖు నాడు ఏసీబీ కేసు పెట్టింది కాబట్టి ఈడీ కూడా కేసు పెట్టి మరి వాళ్ళ విచారణకు పిలిస్తే ఈడీ విచారణకు కూడా హాజరయ్యాను। 2 సంస్థలు కూడా ఒకటే రకమైన ప్రశ్నలు దాదాపు 7-8 గంటల పాటు అడిగిందే అడిగి మొత్తానికి అన్ని వివరాలు తీసుకున్నారు। 2 సంస్థలకు నేను చెప్పిందేమంటే, మీరు ఎన్నిసార్లు పిలిచినా వస్తా, మీరు ఎన్ని ప్రశ్నలు అడిగినా సమాధానం చెప్తా, సంతృప్తికరంగా చెప్తా, పూర్తిగా విచారణకు సహకరిస్తాను। భారత రాజ్యాంగాన్ని, న్యాయ వ్యవస్థను, కోర్టులను గౌరవించే బిడ్డగా తప్పకుండా నా నిజాయితీని ప్రూవ్ చేసుకుంటాను, ఇన్వెస్టిగేషన్ కు పూర్తిగా సహకరిస్తాను అనే మాట వారికి చెప్పడం జరిగింది। हैदराबाद के इलाके अफजलगंज में आज रात फायरिंग के वाक़े से सनसनी फैल गई। फौरी तौर पर मौसूला इत्तलात के मुताबिक रियासत कर्नाटक के बिदर में एटीएम में रकम जमा करवाने वालों पर फायरिंग करके रकम लूटने के बाद वो टोली हैदराबाद पहुंची थी। इस बात की इत्तला मिलते ही बिदर पुलिस की एक खुसूसी टीम आज हैदराबाद पहुंची। अफजलगंज इलाके में टोली ने पुलिस से बचने की कोशिश में फायरिंग कर दी। मालूम हुआ है कि बाद अज़ां वो एक ट्रैवल के दफ्तर में दाखिल हो गए और उन्होंने ट्रैवल्स के मैनेजर पर भी फायरिंग की। ताहम इस वाक़े में किसी के जख्मी या हलाक होने की फौरी तौर पर इतला नहीं मिली। फायरिंग के वाक़े की इतला के साथ ही पुलिस के आला ओहदेदारान मकाम वाक़े पर पहुंच गए। मजीद तफसीलात का इंतजार है। नहीं यार ऑफिस में बच्चा काम करता जहांगीर बोल के उन्होंने टिकट बुक करे कितने बजे 3 से 4 बजे के दरमियान टिकट बुक करे रायपुर जाने के लिए। दो आदमी आए थे,
7 बजे उनकी बस थी, बस में बिठाने गए तो हमारा फॉर्मली चेक करते, हमारा प्रोसीजर है क्या ले जा रहे हैं क्या है, बैगों में चेक करने गए तो कुछ पैसे निकले, तो चलो नीचे उतरो बोल के लोग पैसे दिया करते ये रख ले बोल के, तो बच्चा ने लिया क्या है चल नीचे उतर बोल के उसको नीचे उतारे तक गन लेके मार दिया, 2 गोलियां मार दिया कर। उसमें कुछ पुलिस भी थी करना बिदर की, बिदर की पुलिस भी गाड़ी में बैठे हुए थे, बिदर की पुलिस भी गाड़ी में बैठी के वास्ते। जो इंजूर्ड हुआ वो आपके पास क्या काम करते हैं, नाम टिकट मोहम्मद जहांगीर नाम है उनका, टिकट बुकिंग करते, टिकट मैनेजर है, टिकट मैनेजर है। रोशन ट्रैवल्स पे टिकट किधर भागे वो लोग, फायर करके किधर भागे, उस्मानिया हॉस्पिटल की तरफ भागे। कितने आदमी थे? दो आदमी थे। कितने फायर हुए? दो फायर हुए। तो अभी कंडीशन क्या है? अभी असरा हॉस्पिटल में है वो लोग। वो शख्स यहाँ पर बोल के आप बताए थे, आप लोग को सस्पिशियस क्यों दिखा? उन लोगों के पास कुछ बैग्स थे साहब, बड़े बड़े बैग आते तो उसमें कुछ बच्चा सस्पिशियस देखने की वजह से हमारा प्रोसीजर है गाड़ी के पास जाके बिठाना। बैग लेके भागे वो लोग? हाँ बैग लेके भाग गए। आपका नाम भाई? मेरा नाम रईस अहमद, रोशन ट्रैवल्स। कितने बैग आते हो पास? जी दो बैग थे, 2 बैग। शहर हैदराबाद के कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक टिफिन सेंटर में कल रात आग लगने का वाकया पेश आया। इस वाक़े में किसी के जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली या फिर किसी के जख्मी होने का भी कोई पता नहीं चला। अलबत्ता इस हादसे में माली नुकसान की इत्तला मिली है। शुबह किया जाता है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है। ये होटल अर्जुन थिएटर के करीब है। आग के शोले काफ़ी बुलंदी तक उठ रहे थे। आग के साथ कसीफ धुआं भी देखा गया। इस वाक़े में होटल का मुकम्मल फर्नीचर, 2 बाइक्स और दीगर सामान जलकर खाकस्तर हो गया। मुकामी अफराद की इत्तला पर फायर ब्रिगेड ने वहां पहुंचकर काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। शहर हैदराबाद में चीनी मांझे से कई अफराद के जख्मी होने के वाक़यात के पेश नज़र कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि तमाम की जिम्मेदारी है कि इस चीनी मांझे के इस्तेमाल को रोकने के लिए रज़ाकाराना तौर पर आगे आएँ। उन्होंने कहा कि मांझा बड़ी मकदार में दस्तयाब है क्योंकि इसे मुकामी तौर पर तैयार किया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर आप ई-कॉमर्स वेबसाइट पर ऑर्डर करेंगे तो ये मांझा आपके घर पहुँच जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही ई-कॉमर्स गोदामों की तलाशी ली जाएगी। हैदराबाद के जीडी मेटला में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हादसे में मौत हो गई। हादसा 2 बाइक्स के दरमियान तसादुम की वजह से पेश आया। महलूक की शनाख्त 26 साला एम देवाहर्षा के तौर पर की गई है, जो IDPL चौराहे से KFC के करीब कुतुबुल्लापुर चौराहे की तरफ सफ़र कर रहा था। हैदराबाद के हयात नगर में एक सड़क हादसा हुआ जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। हादसा उस वक्त पेश आया जब बाइक सवार एक मिनी ट्रक से टकरा गया। महलूक की शनाख्त हयात नगर के बंजारा कॉलोनी के रहने वाले इसराम कुमार की हैसियत से की गई है। कुमार की गाड़ी को इंजापुर रोड पर टाटा एस ने टक्कर दे दी। हादसे के बाद इसे शदीद चोटें आईं और उसे हैदराबाद के हॉस्पिटल में इलाज के लिए शरीक किया गया, जहां डॉक्टर ने बाद मायना उसे मुर्दा करार दिया। नेट यूजी इम्तिहान से मुताल्लिक़ मरकज़ का अहम फैसला, पूरे मुल्क में एक ही दिन में OMR के तरीक़ेकार से होंगे इम्तिहानात। बॉलीवुड फिल्म अदाकार सैफ अली खान पर कातिलाना हमला, हालत मुस्तहकम, हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज। BRS से कांग्रेस में शामिल अरकान असम्बली को नाअहल करार दिया जाए, पार्टी सुप्रीम कोर्ट से रुजू। BRS के कारगुजार सदर ED के रूबरू हाजिर, KTR से हुक्काम की पूछताछ। और बैंक मुलाजिमीन पर फायरिंग करके रकम लूट ली गई, ATM में रकम जमा करवाने के दौरान वाकया। ये थी एतमाद की खबरें। आज का खबरनामा यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। दोबारा कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त।